آج بات کریں گے بوریت، بورڈم یا اوب جانا جس کو کہتے ہیں۔ دیکھا ہوگا کہ جو پہلے لوگ تھے، پرانے لوگ تھے، وہ ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے اور کبھی بور نہیں ہوتے تھے۔ آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ممی پاپا کو کہہ دیتے ہیں کہ میں بور ہو گیا ہوں۔ کوئی بھی کام وہ کرتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اوب گئے ہیں۔ آج بھی اگر تم پہاڑوں میں جاؤ تو ہماچل کے لوگ، آپ جا رہے ہیں گاڑی سے، آپ کو بڑی بے چینی ہے، آپ کو بڑی ایکسائٹمنٹ ہے کہ کہیں پہنچنا ہے، تو دیکھا ہوگا کہ کچھ ہماچل کے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں کوئی چائے کی دکان پر، کوئی بیڑی پی رہا ہے، کوئی چائے بنا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ان کو اور کوئی فرسٹریشن بھی نہیں ہے، وہ اداس بھی نہیں ہیں، جیون جی رہے ہیں، بیٹھے ہیں، چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، وہیں سے ان کا گھر چلتا ہے، گزارا چلتا ہے، سنتشٹ لوگ ہیں وہ۔ جو پہلے لوگ تھے وہ کنٹینٹڈ، سنتشٹ لوگ تھے، ٹھہرے ہوئے لوگ تھے۔ آج کل کی جنریشن جو ہے وہ اتنی زیادہ دوڑ رہی ہے ایسی سپیڈ میں کہ اسی سے ان کو بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ بوریت کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس سے اوب جاتے ہیں، آپ کچھ اس سے آگے کا کرنا چاہتے ہیں۔ گاڑی آپ نے لی ہے، تھوڑی دیر چلاتے ہیں تو اس کو بیچ ڈالتے ہیں، کوئی نقص نہیں اس میں، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اوب گئے ہیں کہ اب اس سے بڑھیا آ گئی ہے، وہ لینی ہے، میں تو اس کو چلا کر اوب گیا ہوں۔ موبائل فون آپ لیتے ہیں تو بڑی جلدی چینج کر لیتے ہیں۔ کیا کارن ہے اس کا؟ کوئی گہرا کارن تو ضرور ہوگا۔ کھانا آپ کھاتے ہیں، جو آج کل کے لوگ ہیں، ایک یا دو دن گھر کا کھانا کھا لیں گے، اس کے بعد کہیں گے کہ کہیں باہر کا کھانا منگوا لو۔ کسی بھی چیز سے بڑی جلدی اوب جاتے ہیں، بھیتر ایک بے چینی بنی ہوئی ہے، لگاتار ریسٹلیسنس ہے۔ کیا کارن ہے اس کا؟ اس کا کارن ہے کہ ان لوگوں کا جو نئی جنریشن ہے، دماغ تو بہت تیز ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایکسپلورر ہیں، یہ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، انرجی ہے، ارجا ہے، پر کوئی دشا نہیں مل رہی ان کو، بھیتر سے ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ اپنی انرجی، اپنی ارجا سب طرف بکھیر رہے ہیں، سبھی طرف دوڑ رہے ہیں، تو اسی سے ان کو بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بے چینی پیدا ہوتی ہے تو اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بورڈم کی بھی عادت ہے، اوب جانا بھی ایک عادت ہے۔ آپ اس عادت کے وش ہو کر ہی آپ بور ہو جاتے ہیں، اوب جاتے ہیں۔ کوئی بھی کام آپ
टिक कर नहीं कर सकते। बोर हो जाना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। आप महसूस करते हैं कि कुछ नया करना चाहिए, नए करने के लिए आप उसको तब्दील कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। चेंज तो ऑलरेडी हो ही रहा है सब कुछ। इस अस्तित्व में सब कुछ बदल रहा है। एवरीथिंग इज़ इन ए फ्लक्स। हर चीज़ नई हो रही है यहाँ, कुछ भी पुराना नहीं है। जो आज सूरज उगा है कल नहीं था। जो आज तारे निकले हैं वो नए हैं। जो आसमान आज खुला हुआ है वो कल इतना ऐसे नहीं खुला था। हर चीज़ नई है, अस्तित्व नया हो रहा है। अस्तित्व हर घड़ी फैल रहा है। कोई भी चीज़ पुरानी नहीं है। तुम भी फैल रहे हो, तुम भी बड़े हो रहे हो, बूढ़े हो रहे हो, और तुम्हारे भीतर भी बहुत सी चेंजेस आ रही हैं। हर पल हर सेकंड आप नए हो रहे हो। अगर आप इसको देखो कि मैं हर पल नया हूँ तो बोरियत महसूस नहीं होगी। क्या बात है कि लोग धर्म के मामले में कभी बोरियत महसूस नहीं करते। वही काम रोज़ कई सालों से लगातार कर रहे हैं, वही पाठ रोज़ कर रहे हैं, वही किसी धर्म स्थान में जाना लगातार जा रहे हैं। नाम सिमरन जाप एक ही चीज़ का, एक ही शब्द का, एक ही श्लोक का कर रहे हैं, तो बोरियत महसूस नहीं हो रही। क्या बात है। उनको लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो कुछ मिलेगा हमें, एक्सपेक्टेशन है। वो लोग धर्म के मामले में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ मिलेगा, परमात्मा हमें ऐसा हम कर रहे हैं, हम रिचुअल जो है क्रियाकर्म कर रहे हैं तो हमें कुछ मिलेगा। इसीलिए लोग धर्म में कभी उगते नहीं हैं। अगर आप किसी भी काम को ऐसे करो कि उसमें आपको लगे कि इसमें रस बह रहा है और हर पल जो रस है वो बूंद बूंद करके आप पी रहे हैं, तो आपको एक नया स्वाद आएगा, एक नया टेस्ट आएगा। ऊब पैदा नहीं होगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत सालों से रात के भोजन में मैं एक ही दाल खा रहा हूं। मूंग और मटर की दाल रोज़ खाता हूं। पहल मेरे प्यारे घर के लोग मुझे कहते थे कि आप बोर नहीं होते, एक ही चीज़ रोज़ खाते हैं। मैंने उनसे कहा मैं बोर नहीं होता, मैं एक ही चीज़ खाता ही नहीं। रोज़ मैं वही दाल कहाँ खाता हूँ। दाल के दाने नए होते हैं, पानी नया होता है, नमक नया होता है, बनाने वाले नए होते हैं, आग नई होती है, मैं नया होता हूँ, पल नए होते हैं। तो पुराना क्या रह गया? पुराना तो कुछ भी नहीं रह गया। मैं जब खाता हूँ रात का भोजन
तो मेरे बर्तन उन्हीं बर्तनों में खाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और बर्तन में खा नहीं सकता या दाल के अलावा मैं कुछ खा नहीं सकता, खा सकता हूँ। पर अगर चेंज के लिए चाहूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो चेंज के लिए कर रहा हूँ, तो मजबूरन मैं क्यों करूँ। मुझे तो उसी दाल में हर चीज़ चेंज है, बदली हुई नज़र आ रही है, रोज़ नया स्वाद है। तो ये मैंने आपको उदाहरण अपनी दी है। आप भी किसी काम को करना हो तो ऐसे करो कि वो उससे रस बहना शुरू हो जाए, उससे आपको नया टेस्ट मिले, नया स्वाद मिले, तो आप किसी भी काम से नहीं ऊब सकते। गाड़ी चलाते हो, पुरानी है, ठीक है, मगर बैठने वाला नया है, पल नया है, जहाँ आप जाते हो वो रास्ता नया है, रोज़ नया है, नए लोग मिलेंगे, वही चेहरे आपको रोज़ रोज़ नहीं मिलेंगे, तो पुराना तो कुछ भी नहीं बचा। झाड़ू आप लगाते हो तो ऐसा नहीं है कि वही झाड़ू है और वही कमरा है, तो आप सफाई करते हो तो आप ऊब जाओगे, मुझे इतने सालों से सफाई करनी पड़ती है। मिट्टी के कण, धूल के कण नए हैं, झाड़ू के तिनके नए हैं, तुम नए हो, पुराना क्या रह गया। पानी जो पी रहे हो आप, उसकी बूंद बूंद नई है। भोजन जो खा रहे हो, उसका एक एक दाना नया है। जो गया सो गया, जो है वो नया है। अगर ऐसी भाव दिशा होगी तो ऊब पैदा नहीं होगी, बोर्डम पैदा नहीं होगा। दौड़ अगर जारी भी रहेगी तो आपका एक होश भीतर कायम रहेगा। अगर दौड़ना है तो होश ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा होश चाहिए। होश ही सूत्र है ध्यान का। अगर आपको अवेयरनेस है, होश है, तो आप चीज़ों को नया कर सकते हैं। हर पल आप नए हैं। तो ऐसी अगर आपको लगे कि आपकी मन की दशा ऐसी है, आप ठहर जाएंगे अपने भीतर ही, तो उससे आपको ऊब पैदा नहीं होगी, कभी भी बोर्डम नहीं होगा। आप उसी काम को रोज़ रोज़ मज़े से, आनंद से, शांति से करते रहोगे, तो वो सारा जो भी आप कर्म करोगे वो आपको आनंद से भर देगा। तो आप बोर्डम से पार चले गए, वो पैदा नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।